Yes, so topic judiciary. So judiciary, what includes judiciary? Judiciary का mean it is also one of the organ of government. ठीक है, one of the हमारा government का ही एक organ है. And इसमें we include all courts of India. ठीक है, all the systems of judiciary, all the courts of India, judicial system of India, mechanism of all the courts. ठीक है, courts are different level, so all they are the part of judiciary. A system of all the courts or set of all the courts ठीक है. So judicial system, it includes all the courts of India, and it is also one of the organ of government which is responsible for protecting the law and giving justice. Clear? So सबसे पहले जो हमारा इसमें टॉपिक है उसमें हम करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस लेवल ऑफ और स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट. ठीक है, कि हमारे कोर्ट में स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट क्या है, वेरियस लेवल्स. कौन से लेवल्स हैं? व्हाट आर द वेरियस लेवल्स ऑफ कोर्ट? 3 levels are there. First, central, state and local level. And at central level there is Supreme Court, and that state level there is High Court, and this is all the system of courts. And at district level there are ठीक है, local level और district level there are district courts, subordinate courts. ठीक है, that you can write. So there are different levels of courts. So this is a structure of court. Then our judiciary is independent. जो हमारी जुडिशरी है, इंडिया की जुडिशरी, वो क्या है? Independent means not under the control of other organs of government. It is also one of the organ. दूसरे organ क्या हैं? Legislature, executive. ठीक है, so it is free from the control of other organs of government. जो other organs of government है, they can't interfere in the working of judiciary. ठीक है, so it is free from their interference, we can say. कि उनकी इंटरफेरेंस इसमें नहीं है. इट कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली, ये अपना काम जो है इंडिपेंडेंटली करती है. ठीक है, अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट दे डोंट इंटरफेयर इन इट्स वर्किंग. और इसका काम क्या है, इसका वर्क, इसका रोल, इसकी इंपॉर्टेंस. ठीक है, सो व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? यस, टेल एनी पॉइंट. It doesn't make laws, it protect laws. ठीक है, protect the laws. तो सबसे पहले तो हम यही लिख सकते हैं, it protects the laws and fundamental rights, upholding the law and enforcing. इसके लिए जो टर्म है आपकी बुक में लिखी गई, that is upholding the law and enforcing fundamental rights. हाँ जी, justice for all. So upholding the law, तो जो लॉ है, हमारा लॉ यही कह रहा है कि everyone is equal before law, so it is upholding that law. हमारा लॉ यही कह रहा है ना कि everyone is equal before law, so it is upholding that law and enforcing the fundamental rights. और जो लोगों के fundamental rights है, if they are violated in any case, so they can approach the court. ठीक है, वो कोर्ट में क्या कर सकते हैं, दे कैन अप्रोच. ये क्लियर हो गया. अपहोल्डिंग द लॉ, लॉ को अपहोल्ड करती है, मींस कि whatever laws has been made in the constitution, it upheld every law.
और उसी लॉ को प्रोटेक्ट करके साथ में फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स भी करती है कि इफ एनी फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। ये सेकेंड वन, it is the interpreter of constitution. It also explains the law. It uphold the law. Uphold तो करके रखती ही है. Interpreter means कि if there is any confusion regarding any of the statement in constitution, अगर constitution में जो भी statements लिखी गई हैं किसी statement के related कोई confusion हो जाती है between the government or the people, so it interprets that पर्टिकुलर लॉ, उस पर्टिकुलर लॉ को ये इंटरप्रेट करती है कि दिस इज, अगर हो सकता है चेंजिंग सिचुएशन में उसको जो भी फिर इसका डिसीजन होगा दैट डिसीजन विल बी फाइनल। सो इट इज आल्सो द इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ क्या है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। क्लियर? हाँ जी बेटा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी करती है कि वट एवर इज द डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट किस किस के बीच में हो सकता है? तो डिस्प्यूट कैन बी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है। अब वो किसके बीच में हो सकता है? इट कैन बी बिटवीन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है। देन इट कैन बी बिटवीन स्टेट्स, स्टेट्स के बीच में हो सकता है, या इट कैन बी इन सेंटर एंड स्टेट, या सेंटर और स्टेट के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है। सो इट सॉल्व्स द डिस्प्यूट, ठीक है, एट वेरियस लेवल। सो कहीं में भी डिस्प्यूट हो तो इसको सॉल्व करती है। यस, एनी अदर? तो जो जुडिशियल रिव्यू है वो भी इसमें इंटरप्रेटर ऑफ लॉ में भी पॉइंट आ सकता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का पॉइंट। हाँ जी, तो वो भी इसमें आ गया, एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। सो इफ द राइट इज वायलेटेड देन इट प्रोटेक्ट दैट राइट। ठीक है, सो इट एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स। तो इसी के आप सब पॉइंट्स बना के नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, सब पॉइंट्स इसके बना सकते हो कि प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, ये उसमें आप लिख सकते हो। जुडिशियल रिव्यू वो इसमें आ जाएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, कि इफ इट फाइंड्स कि एनी लॉ इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कोई लॉ इंटरप्रेट तो करती ही है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी बन सकता है, इसके साथ भी आ सकता है कि इफ इट फाइंड्स एनी लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन डिक्लेयर दैट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, सो दिस इज रोल ऑफ जुडिशरी। ये हो गया इसका रोल। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इट इज फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इट एक्ट्स, इट डज इट वर्क्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, विदाउट द कंट्रोल ऑफ एनी अदर ऑर्गन। Then these are various its role, स्ट्रक्चर हो गया, रोल हो गया, इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसकी इंडिपेंडेंस होगी, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। देन ये स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स में आप ये कर सकते हो। इसमें अभी जो केस स्टडी है, तो केस स्टडी तो आप रीड कर लेना। ठीक है, सो then comes the different branches of legal system। ठीक है, different branches of legal system, कि जो हमारी कंट्री में लीगल सिस्टम है उसकी different branches। तो लीगल सिस्टम में लॉज किस किस तरह के हैं? सिविल लॉज भी हैं और क्रिमिनल लॉज भी हैं। ठीक है, सिविल एंड क्रिमिनल। क्लियर? और सिविल लॉ, सिविल लॉ तो इनके ये किससे डील करता है एंड क्रिमिनल लॉ किससे डील करता है? यस, सिविल लॉ डील्स विद कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स। इसमें हम बात करेंगे, राइट्स तो वायलेट हो ही रहे हैं। ठीक है, राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, बट हियर वी टॉक अबाउट क्रिमिनल और सिविल का हमने डिफरेंस इसमें बताना है ना। तो क्रिमिनल में हो गए कि इफ सच एज
इट कंडक्ट्स और एक्ट, जिनको हमारा लॉ ऑफेंस डिक्लेयर किया हुआ है, हमारे लॉ ने जिनको ऑफेंस डिक्लेयर किया हुआ है कि ये एक अपराध है, all the act और that law defines as offenses, कि लॉ ने उनको क्या डिक्लेयर किया है कि ये ऑफेंसेस हैं, ये अपराध हैं। तो अगर ये कोई करता है देन इट इज अंडर द क्रिमिनल लॉ। ठीक है, जैसे कि harassing a woman for dowry या murder, so such type of cases they come in criminal cases। so जितने भी एक्ट हैं, ठीक है, that has been explained as offense by law, so they come under in this criminal case। and in civil case में कि अगर हार्म और इंजरी किसी इंडिविजुअल को हुई है या उसके राइट्स को वायलेट किया गया है या कोई डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, इसमें ऑफेंसेस हैं, इसमें हम ऑफेंसेस को इंक्लूड कर रहे हैं जिनको लॉ ने ऑफेंस डिक्लेयर किया है। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं कि कोई किसी के राइट का हम वायलेशन हुई है, ठीक है, या राइट की वायलेशन हुई है, वायलेशन ऑफ राइट्स या डिस्प्यूट्स, ठीक है, विद उसमें कोई हार्म नहीं है, फिजिकल हार्म नहीं है उसमें, ठीक है। सो इंजरी हुई है या हार्म हुआ है राइट्स को, ठीक है, इंडिविजुअल को फिजिकल हर्ट नहीं हुआ है, सच एज डिस्प्यूट रिलेटेड टू लैंड और डाइवोर्स केसेस, रेंट मैटर्स, इस तरह के केसेस इसमें हो गए, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इसमें, अब इसमें एफआईआर जो है क्रिमिनल केसेस में भी एफआईआर करवानी पड़ती है, एफआईआर हैज टू बी रजिस्टर्ड, और who investigate the crime, and after investigation case is filed and then proceedings and then punishment is given to the accused person, accused जिसने crime किया है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट क्राइम जो है लगा है। if found guilty then accused can be sent to jail। तो इसमें FIR then proceeding investigation, ठीक है, and then accused person that is sent to jail, or whatever the punishment is decided by the law that is given to him। and if there is criminal case, यहाँ पे सिविल लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हमने क्रिमिनल केस में लिखनी है FIR, ठीक है, then the accused person that is sent to jail, ठीक है। so सिविल लॉ में पेटिशन भी फाइल की जा सकती है, सिविल लॉ में जरूरी नहीं हमने FIR करवानी है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, FIR की फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। अब पेटिशन, इसमें पेटिशन फाइल की जाती है जिसके भी राइट्स वायलेट हुए हैं, ठीक है, किसी के भी राइट्स वायलेट हुए हैं वो पेटिशन फाइल करेगा, एंड आफ्टर पेटिशन फाइल देन कोर्ट कैन आस्क फॉर रिलीफ कंपेंसेशन, ठीक है, रिलीफ कंपेंसेशन, और इन केस whatever the punishment has been decided, ठीक है, तो उस तरह की उसको रिलीफ या पेमेंट या कंपेंसेशन वो देने के लिए they can ask, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंसेस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है कि these are the laws made, so does these laws are applicable to everyone, does everyone has access, कि who has the access to these laws, ठीक है, ये एक्सेस सभी के पास है कि नहीं है, who has। so in constitution everyone is equal before law, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो सबको इक्वल कहता है, and all the citizen they have access to court, ठीक है, सभी सिटीजन कोर्ट जा सकते हैं। Why there is disturbance again and again in this side only? So access to court, every person, so all the citizen they have access, ठीक है, according to our constitution all citizen have access, but the poor sometimes they can't afford the legal proceedings, the payments or the fees charged by the legal proceedings, ठीक है, so they are unable to pay,
and they are unable to afford all these expenditures that has been done on these legal proceedings. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली फिर इंडियन गवर्नमेंट ने it has passed an act or devised a mechanism in 1980, that is PIL means public interest litigation. Public interest litigation. So public interest litigation means any person can file a petition. ठीक है, जैसे हमने सिविल केसेस में किया था कि पेटिशन फाइल की जाती है कि जिसके राइट्स वायलेट हुए हैं वही फाइल करेगा. ठीक है, दूसरा कोई और पर्सन नहीं करेगा. जिसके राइट्स वायलेट हुए हैं वो अपने लिए एक पेटिशन मतलब एक अर्जी एप्लीकेशन वो फाइल करेगा कोर्ट में. ठीक है, अब PIL के अकॉर्डिंग नाउ एनी पर्सन कैन फाइल ए पेटिशन ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पर्सन्स. ठीक है, कोई दूसरा पर्सन भी किसी दूसरे के बिहाफ पे पेटिशन फाइल कर सकता है इफ देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड. ठीक है, सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इट मींस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इट इज ये क्या है, ये एक तरह की पेटिशन है. सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन. ठीक है, फॉर अदर्स हुज राइट्स आर बीइंग वायलेटेड. Or it can be filed in High Court or Supreme Court. And then, then Supreme Court, it decides the case and gives justice to poor also. So it means through this, the judiciary, it has approached the poor strata of the society also. So judiciary, इट ऑल्सो सर्व्स. अब इसी में यहाँ पे एक और हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जुडिशरी जो है इट ऑल्सो सर्व्स एज ए चेक ऑन अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, कि दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनकी वर्किंग के ऊपर एक चेक भी लगाती है सो दैट दे कैन एक्ट आर्बिट्ररी, कि वो आर्बिट्ररी कोई भी एक्ट ना करे, क्योंकि उनके एक्ट के अगेंस्ट भी अगर कोई वो लॉ बनाते हैं तो इट कैन डिक्लेयर दैट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. उस लॉ को वो क्या कर सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है, सो चेक ऑन अदर ऑर्गन्स. अदर कौन से हैं ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. कि ये नहीं लेजिस्लेचर कोई भी कानून बनाती जाए. इफ इट लेजिस्लेचर हैज द राइट टू मेक लॉज, तो जरूरी नहीं वो कोई लॉज बनाती जाए. तो ये चेक कैसे रखती है, थ्रू द जुडिशियल रिव्यू. इट कैन डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल if the wrong law is passed by the judiciary. ठीक है, जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया था, if there is any unpopular law then people can approach to the judiciary. Then judiciary, if it finds that law, if it is against the constitution, अगर judiciary को लगता है कि ये constitution के against है तो वो उसी को उस टाइम unconstitutional declare कर देगी. ठीक है, and if not, if it is not against, then it finds to रिजॉल्व द डिस्प्यूट. तो फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि कैसे डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए, चाहे वो इंडिविजुअल्स के बीच में है, इंडिविजुअल्स या स्टेट्स के बीच में है. ये भी हम इसमें लिख सकते हैं, एक और इसमें ऐड हो सकता है, इंडिविजुअल या स्टेट. ठीक है, इंडिविजुअल या स्टेट के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है. दो इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकता है, स्टेट्स के बीच में भी हो सकता है, सेंटर और स्टेट के बीच में भी हो सकता है, इंडिविजुअल्स और स्टेट के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है. ठीक है, सो यस यस स्टैंड अप. सो हाउ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप. Yes. Any person can file. वो तो earlier भी था, but how this is a significant step. Earlier भी anyone can file the petition. So how this is a significant step? What is the difference? Yes, Harman.
जैसे आपकी बुक में केस स्टडी भी है कि वो हरास की जा रही थी, उनके अगेंस्ट उन्होंने कह दिया था कि एक्सीडेंटल उसकी डेथ हो गई है, बट द केस हैज बीन फाइल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको फ्री कर दिया था, but the case has been filed by other organization, public interest litigation was filed, then again decision was under consideration by Supreme Court, और फिर उन्होंने उनको पनिशमेंट दी. So PIL can, ये नहीं कि हमारा right violate हुआ so we can have the right to give the petition. Any other organization they can give in public interest litigation for the behalf कि if the interest of particular person or particular group of person is violated, अगर कहीं पे कोई इंडस्ट्री है जिससे कि वहां पे रहने वाले लोगों को नुकसान हो रहा है, सो एनी एनजीओ इन दैट एरिया कैन फाइल अ पिटीशन अगेंस्ट दैट इंडस्ट्री, PIL. ठीक है, सिट डाउन, क्लियर? सो यस लविश, what are the various levels of court in India? Which court is highest court of India? Supreme Court. And can the cases against the decision of High Court, can petition be filed in the Supreme Court against the decision of lower courts? Yes or no? Okay. So this is all about this topic. इसमें से तो हमारे सिर्फ यही टॉपिक है. Is there any doubt from these topics? ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स यही सारे इसमें से क्वेश्चन आंसर भी हैं. हाउ जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, हाउ जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट. यस रुद्रांश, how judiciary is independent? How judiciary is independent? हाँ जी, explain more. Yes Ishan, sit down. So no other organs of government can interfere in its working. It can act independently. It has no pressure on it, ठीक है, of interference of any other outside, ठीक है, no outside interference. So it can take its decisions independently, ठीक है. This means independence. So your doubt was dispute resolution. Dispute, there can be disputes among दो इंडिविजुअल्स में डिस्प्यूट हो सकता है, दो स्टेट्स में डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है, दो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, या इंडिविजुअल्स और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है. किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो, सो देन दिस डिस्प्यूट इज रिजॉल्व बाय द जुडिशरी, ठीक है. डिफरेंट लेवल्स पे हैं तो पिटीशन कैन बी फाइल. अगर सेंटर और स्टेट के बीच में है तो देन दैट केस विल बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. अगर इंडिविजुअल्स के बीच में है तो वो किसी भी लेवल पे केस फाइल हो सकता है, बट इट इज इफ इट इज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट देन इट कैन बी इन द सुप्रीम कोर्ट ओनली, ठीक है, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में है. हाँ जी बेटा, इंटरप्रेटर ऑफ लॉ. इंटरप्रेटर ऑफ लॉ मीन्स लॉ इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. सो इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम. जरूरी नहीं है कि जो लॉ की इंपॉर्टेंस 50 इयर्स पहले थी वही सेम लॉ आज की सोसाइटी में ऐसे ही एप्लीकेबल है. हो सकता है उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन चेंज हो गई है, तो और गवर्नमेंट उसको कैसे इंटरप्रेट कर रही है, ठीक है. इसके लिए एग्जांपल, जैसे कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अब इतना डिटेल में हम नहीं जाते, ठीक है. जैसे कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ लिखा हुआ है तो गवर्नमेंट ने उसको अकॉर्डिंगली अपने इंटरप्रेट करके एक नया लॉ बना दिया, ठीक है. लेकिन जुडिशरी कह रही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी जस्टिस के ऊपर बेस है, तो इस लॉ से इस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ इनइक्वालिटी हो रही है, तो ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है, ये लिबर्टी के अगेंस्ट है, ये जस्टिस के अगेंस्ट है. तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट है, ठीक है. तो इसलिए ये जैसे कोई भी केस इसके पास आया है जुडिशरी के पास,
तो इट इंटरप्रेट उस लॉ के बिहाफ पे आया है कि इस लॉ के हमारा जो राइट है इट हैज बीन वायलेटेड, इस लॉ के कारण हमारा राइट वायलेट हुआ है, जो गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया है। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू जस्टिस, ये जस्टिस के अकॉर्डिंगली नहीं है, ये हमारे फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंगली नहीं है। राइट टू लाइफ, जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है तो ये भी हमारी राइट टू लाइफ में है कि हमें फ्री एंड पॉल्यूशन फ्री एयर का राइट है फॉर आवर लाइफ। तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने अब लॉज बनाए हैं एनवायरमेंटल पे, ठीक है। तो वो राइट टू लाइफ में ऐड हुए हैं, लॉ को और इंटरप्रेट किया गया है। लॉ हमें मिला हुआ है, राइट हमें मिला हुआ है राइट टू लाइफ का। कॉन्स्टिट्यूशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको और इंटरप्रेट किया है कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट इज आल्सो आवर राइट, ये भी हमारे बेसिक राइट में ही है। तो कोई भी इंडस्ट्री रेजिडेंशियल एरिया में नहीं लगाई जाएगी, दिस इज आल्सो वन ऑफ द लॉ। अब ये भी उसकी इंटरप्रिटेशन हो गई, ठीक है। तो पेटिशन फाइल की गई तो उस सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, तो उसने क्या किया, लॉ को और इंटरप्रेट कर दिया, ठीक है। कि एक लॉ सिंपल लिखा हुआ था कि राइट टू लाइफ, वी हैव राइट टू लाइफ। अब वो राइट टू लाइफ हमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं, बेसिक्स क्या हैं, राइट टू एजुकेशन वो भी अब नया ऐड हो गया है राइट टू लाइफ में ही, क्योंकि एजुकेशन भी हमारी बेसिक चीज है, ठीक है। सो दिस इज इंटरप्रेट, कि जो भी लॉ लिखा हुआ है उसी को और इंटरप्रेट मीन एक्सप्लेन करना। इंटरप्रेट का मीनिंग क्या होता है, एक्सप्लेन करना, कि लॉ को एक्सप्लेन करती है कि ये जो लॉ है इसका इनहेरिट मीनिंग क्या है, ठीक है। क्लियर, एनी अदर डाउट बेटा? ठीक है, सो नाउ यू हैव टू रिवाइज दिस। सो एनी यस बच्चे, एनी अदर क्वेश्चन, रेज योर हैंड। यस, रेज योर हैंड फॉर क्वेश्चंस। यस बेटा, व्हाट इज PIL? A petition can be filed just through a letter, email also, ठीक है। If we can send just a letter, that can be considered as a PIL, उसको भी PIL consider कर लिया जाता है। So yes शब्द, what do you mean by criminal law? Criminal law, yes, online student, raise your hand. Yes बच्चे, फर्स्ट लाइन आपकी क्लियर नहीं हुई, कंडक्ट, कंडक्ट मीन्स एनी एक्शन, ठीक है। इट डील्स विद द कंडक्ट और बिहेवियर दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ऑफेंसेस बाय द लॉ, ठीक है। सो दैट इज अंडर द क्रिमिनल कोड। फॉर एग्जांपल आप उसमें दे सकते हो, देन FIR इज रजिस्टर्ड in that case, and after the investigation, if the person that is filed guilty of that particular crime, then he is given due punishment by the law, ठीक है। हाँ निशब, same। Yes, this line, all of you show me your notebooks where you have noted down the points. Yes, this line. Yes, last. Yes, Shab, sit down now. Yes, online students. Have you noted down all the points? And no one is also not responding. So you are not actually present here and not giving any response. Okay, Pari.
So Pari only responded. Yes बच्चे. So it means इसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस तो कई हो सकते हैं, ठीक है. तो जो इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस वो ये हो सकते हैं, ठीक है. एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट, वो तो आपको चैप्टर में से कहीं भी इन डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा. देन व्हाट डू यू मीन बाय द, अब इसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट, हाउ इट अपहोल्ड्स द लॉ, हाउ जुडिशरी अपहोल्ड्स द लॉ. हाँ जी बेटा. अपहोल्ड द लॉ में हम इसको प्रोटेक्टर ऑफ लॉ भी वो एक्सप्लेन कर सकते हैं. अपहोल्ड द लॉ, वट एवर लॉ इज मेंटेन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट प्रोटेक्ट ऑल द लॉज, ठीक है. सो इट अपहोल्ड द लॉज, वट एवर लॉज आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. सो हाउ इट एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स, एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स मीन फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, तो हाउ इट एनफोर्स, एनफोर्स का मतलब इम्प्लीमेंट करना, ठीक है. सो हाउ इट एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स को कैसे एनफोर्स करती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी. हाउ, अभी हमने डिस्कस. Yes, if any fundamental right of any person is violated, then they can approach the court, ठीक है. They can approach judiciary, and that particular law is protected by the judiciary. So this enforce fundamental rights also. Clear? Okay then, thank you beta.